Hi everyone. Thank you for taking the time out to join us from your busy schedule at AIF PMS Experts. We are thrilled to introduce our brand new show, Ask the Expert Show. Through webinars, we aim to share insights, drive asset classes, forecasting knowledge, exchange amongst our investor community. So, my name is Devanshu Midlish, and I am the Vice President of AIF PMS Experts India. I have with me Mr. Jamin Gupta, promoter and founder of Step Trade Capital. Uh, and we have Yash Bhanushali from Step Trade Capital. Let me take a moment to introduce Mr. Jamin Gupta. So, Jamin, when it comes to SME market spaces, he can be attributed with adjectives like market expert and one who owns the SME market space with deep, extensive knowledge and represent the changing trend in the investment space with otherwise in the largely governed by large caps. He has deep-rooted connections with various SME entrepreneurs across various sectors, especially in manufacturing and service spaces. He brings unique skill set when it comes to discovery and unlocking of emerging companies who are going to be rising star near future. So welcome, Jamin ji from Step Trade. How are you? Thank you. I'm doing good. Thank you so much, Devanshu, for having us. We are great talking about, we feel great talking about the SME on your platform. Yeah. So, Jamin ji, we would run the show with a very, small format. So what we do is basically first you can give a small explanation about Step Trade for the initial 10 minutes, and then we will have Q&A session, what my investor community would like to ask you. Please go ahead. Okay, I just thank you so much, Devanshu. I'll just like to ask one thing: are the investors aware about the product or anything? So we need to talk about that also. So a couple of them are aware about it, and So so I'll you just need. talk shortly about that. No Yeah. problem. So if Okay, you okay. want me to share the screen, should I share the screen? So my screen is visible. Yes. Sure. Let me make it to the presentation level. Yeah, perfect. So basically, this is the presentation of our StepTrade PMS. So before we step into the PMS vertical, I'll just take 5 minutes of yours to talk about StepTrade Capital. So StepTrade Capital has its roots 20 years back. मतलब चालू 20-25 साल पहले हुआ था. लास्ट 20-25 ईयर्स से कंपनी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही थी और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रही थी. फिर इन ड्यू कोर्स जिस हिसाब से मार्केट्स ग्रो हुए एंड जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आने लगा कंपनी में टू इन्वेस्ट विद अस, सो वी थॉट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट बाय थ्रू अ सेबी लाइसेंस जहां पे हम इन्वेस्टर से फंड्स ले पाए. सो हमने अगस्त 2022 में हमारा फर्स्ट फंड चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया था, विच इज AIF कैट 2. फिर हमने हमारा एक कैटेगरी 3 स्टेपट्रेड रेवोल्यूशन फंड लॉन्च किया था और अभी हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए स्टेपट्रेड PMS सर्विसेज को लॉन्च किया है. नाउ तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो अपने अपने वर्टिकल्स पे फोकस रखते हैं. सो चाणक्य हैज अ deep focus on the anchor portions, on the QIB, on the pre-IPO in the SME segment, and as well as small and micro. StepTrade Revolution Fund has more portion on the anchor investments. So both those funds have done more than 15 anchor investments since their inception. And QIB portion के investments होते हैं, pre-IPO investments होते हैं, secondary market के investments होते हैं. चाणक्य secondary market के investments नहीं करता. StepTrade Revolution Fund secondary market के investments करता है. So these are about the two AIFs. Then the third which we have launched is the PMS. So PMS will start the presentation. So we have two strategies in the PMS: StepTrade SME Fund and StepTrade Rising Star Fund. So everyone is aware PMS में एक 50 lakhs का minimum investment होता है and multiple strategies होती है. Investor can bifurcate their funds according to their strategies and their risk profiling. So हमने दो strategies launch कर रखे हैं, StepTrade SME Fund and StepTrade this Rising Star Fund, which is for small cap and micro cap investments. We'll talk about the strategies later. So journey of StepTrade, जैसे मैंने बताया, November 93 में we founded the company. फिर August 22 तक it was a privately held company. Then August 22 में हमने fund launch किया. First fund was चाणक्य Opportunities Fund. It is doing great. मतलब बहुत अच्छे returns generate किए हैं last 2 years में.
Then we launched Step Trade Revolution Fund, which was a Cat 3 fund. Then we launched a special situation fund. Then we launched our PMS license. Next slide. So basically, I'll talk about why choose Step Trade. So when we talk about why choose Step Trade, तो इसमें कोई प्रोडक्ट की बात नहीं आती है, ये पर्टिकुलरली ब्रांड की बात है कि स्टेप ट्रेड के साथ क्यों, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, बट स्टेप ट्रेड के साथ क्यों. सो हमने हमारा जो फोकस एरिया है वो एसएमई और माइक्रो कैप है. चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, स्ट्रेटेजी हमेशा इन्वेस्टमेंट की एसएमई और माइक्रो कैप में रहेगी. जो ये सेक्टर्स है, इसके लिए एक बहुत ही क्वालिटेटिव एनालिटिक स्किल्स लगता है. लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स में ऑलरेडी देयर आर 100 ऑफ पीपल डूइंग रिसर्च, बट एसएमई और माइक्रो कैप की कंपनीज में कोई रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं आती है. ये हमको ही हमारे हिसाब से रिसर्च प्रिपेयर करना पड़ता है. तो जो एसएमई और माइक्रो कैप का हमने पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. मल्टीपल सेक्टर्स को कंसिडर करता है, मल्टीपल मार्केट कैप्स को कंसिडर करता है, मल्टीपल रेंज को कंसिडर करता है. बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है. जो हमारी एनालिसिस टीम है, जो ये सारा की एनालिसिस करती है कंपनियों का, वी हैव गॉट अ वेरी गुड एक्सपर्ट्स टीम जो पूरा एनालिसिस करती है. देन इन्वेस्टमेंट का जो कॉल लेना होता है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है, इन्वेस्टमेंट कमिटी में हर स्किल का बंदा है. टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस. तो दिस थ्री आर द मेजर एनालिसिस जो हर कंपनी को करना पड़ता है, हर कंपनी के लिए करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले. इस हर एक एनालिसिस के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसको हमने हमारी इन्वेस्टमेंट कमिटी में रखा है. सो दिस इज वाई, वो चाहे फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए हो, बट वो इन्वेस्टमेंट कमिटी के पार्ट है, वो सारी स्किल्स. सो स्किल्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ एनालिसिस. सो जैसे promoters expertise in SME segment, basically the promoters have been dealing in the SME segment since last 7 to 8 years. This is why we got interest from multiple investors to invest with us, and that is why we started the fund in PMS. So the promoters have a very core expertise and experience of last 7 years into the SME segment. Practical allocation to SME and micro cap. सो बेसिकली क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर अपना पूरा पोर्टफोलियो एसएमई में नहीं डालना चाहेगा. वहां पे रिस्क प्रोफाइलिंग थोड़ा उसका बढ़ जाता है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है. तो इसीलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, जहां पे माइक्रो कैप और स्मॉल एसएमई एक्सचेंज में फंड्स घूमते रहे. कभी माइक्रो कैप का टाइम पीरियड सही रहता है, कभी एसएमई का टाइम पीरियड सही रहता है. कभी माइक्रो कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कभी एसएमई में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है. तो वो टाइम टू टाइम उसको एनालिसिस करते रहना, और फिर उस हिसाब से फंड्स को डाइवर्सिफाई करते रहना, उसको एलोकेट करते रहना. दिस वी डू वेरी रैपिडली. नेक्स्ट देवांशु. जैसे मैंने बताया, लास्टली हम लोगों ने 2 साल में चाणक्य में बहुत जबरदस्त रिटर्न जनरेट किए. सो बेसिकली चाणक्य ने लास्ट ईयर में 32% का रियलाइज्ड गेन जनरेट किया है. 32% का रियलाइज्ड गेन, यानी 32% का पैसा कंपनी ने खाते में बुक कर लिया, उस पर टैक्स भी भर दिया, टीडीएस भी भर दिया इन्वेस्टर्स के लिए. सो हम कोई आईआरआर या अनरियलाइज्ड गेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रियलाइज्ड गेन की बात कर रहे हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल अप्रोच. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड ने इतना ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिया कि इन्वेस्टर अपना डेली एनएवी ट्रैक कर सकता है, फंड की डेली कैश पोजीशन देख सकता है, सारे इन्वेस्टमेंट, सारे ट्रेड्स को लाइव ट्रैक कर सकता है. सो इन्वेस्टर्स गेट अ लॉगिन पोर्टल, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जहाँ पे वो लॉगिन करके डेली सब चीजों को ट्रैक कर सकते हैं. ये एआईएफ इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई फंड ने इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिया था. सो वी बिलीव इन वेरी हाई ट्रांसपेरेंट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. यही सेम चीज हमने पीएमएस में भी रखा है. इन्वेस्टर्स विल बी अवेयर अबाउट द देयर कैश पोजीशंस, investments, all trades, everything complete. And this will be a live data, live in the sense डेली ट्रैकेबल डेटा. मतलब अगर आज कुछ भी सौदा हुआ है, आज के पूरे दिन के जितने भी ट्रेड्स है, वो शाम को 6 बजे इन्वेस्टर को लाइव दिख जाएगा कि आज के दिन में कंपनी ने क्या किया. सो वो कहीं पे भी ये माइंडसेट के साथ इन्वेस्टर कंफ्यूज नहीं रहेगा कि उसके पैसों के साथ क्या हो रहा है. वो डेली अवेयर है, तो उसको अगर कोई भी कॉल लेना है, इन्वेस्टर को कोई भी डिस्कशन करना है, वो तुरंत कर सकता है 24 आवर्स में. कस्टमर सेंट्रिक फोकस. सो वी आर हाईली कस्टमर सेंट्रिक. वी आर हियर फॉर अ वेरी लॉन्गर रन. हमको कंपनी को स्टार्ट किए, मतलब फंड्स को स्टार्ट किए 2 साल हुए, हमारा गोल 10 साल का है. सो जब कंपनी 10 साल का सोचती है, तो उसके लिए उसके कस्टमर्स बहुत प्रायोरिटी पे आ जाते हैं. तो हर एक कस्टमर के साथ एक पर्सनल टच रखना, एक रिलेशनशिप मैनेज करना, एंड उनके प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉर्ट करते रहना. सी व्हेन वी डू बिजनेस और व्हेन एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट विद अस, देयर विल बी मल्टीपल कंसर्न्स व्हिच विल कीप अराइजिंग विद द इन्वेस्टर इन मल्टीपल टाइम्स. कभी उसको इन्वेस्टर विल थिंक ये कंपनी में पैसा क्यों लगाया, इधर इतना सारा कैश मेरा इतना टाइम से क्यों पड़ा है. द पॉइंट इज, ये सारी चीजें तो रहेगी बिकॉज हर इन्वेस्टर
हर फंड मैनेजर का अपना अपना ओपिनियन होता है, वो हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, बट उसको क्लैरिफाई करना, इन्वेस्टर को एक क्लैरिटी देना कि हमने ये क्यों लिया, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने उसके लिए डेडिकेटेड टीम रखी है, एंड द टीम इज 24/7 अवेलेबल फॉर एनी इन्वेस्टर टू गेट द क्लैरिटी। नेक्स्ट। सो जैसे चाणक्य का फंड परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया, नेक्स्ट स्लाइड। एसएमई एक्सचेंज का मार्केट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएमई एक्सचेंज, तो यूजुअली पीपल थिंक दैट एसएमई एक्सचेंज थोड़ा इलिक्विड है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है, एंड सही नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये चीजें जो है, जो भी हम मैट्रिक्स की बात करें या जो भी पॉइंट्स की हम बात करें जहाँ पे लिक्विडिटी कंसर्न है या कंपनीज की ऑथेंटिसिटी को लेके अगर कोई डाउट आ सकता है, ये सारी चीजें आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले होती थी, अब नहीं होती है। लास्ट 3 साल में मार्केट इतना इवॉल्व हो चुका है, इतना मैच्योर हो चुका है एसएमई एक्सचेंज का। अब जो कंपनियों के आईपीओ आते हैं उनका डीडी प्रोसेस बहुत हार्ड हो गया है, एनालिसिस करने का तरीका बहुत बदल चुका है, फिल्टरेशन पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं। कम एसएमई एक्सचेंज की मार्केट लिक्विडिटी के बारे में, मतलब आप आई डोंट थिंक सो वहां पे मुझे कुछ ज्यादा बोलना है, बिकॉज एवरीवन नोस के आईपीओ 500 गुना बढ़ रहे हैं। सो उससे बड़ा कोई पॉइंट ही नहीं है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है। सो एक नॉर्मल स्टैट्स हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। लास्टली more than 400 companies on BSE, more than 400 companies on NSE, सब मिला के करीबन 800 कंपनियां के आईपीओ आए हैं। ये 800 कंपनियां जिनके आईपीओ आए हैं, इसमें से अप्रोक्स 35% कंपनियां मेन बोर्ड पे माइग्रेट गई हो चुकी है, यानी 300 350 कंपनियां मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो चुकी है। सो जो स्टेप ट्रेड पीएमएस है, वो ये 300 350 कंपनियों के लिए बनाया गया है जो मेन बोर्ड पे माइग्रेट होने वाली है। सो एसएमई पे जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, उसको 3 साल लगता है या 2 साल लगता है मेन बोर्ड पे माइग्रेट होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्राइटेरिया। एंड दूसरे और भी 2-4 क्राइटेरिया है जो कंपनी को फुलफिल करने पड़ते हैं मेन बोर्ड पे माइग्रेट होने के लिए। जब ये कंपनी 2 साल या 3 साल में मेन बोर्ड पे माइग्रेट होती है, तो वो वहां से 5x 10x का ग्रोथ पोटेंशियल देखती है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ स्टेज पे है। उसने एसएमई में 2 साल 3 साल निकाल लिया, वो जब मेन बोर्ड पे जा रही है तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी, तभी मेन बोर्ड पे जा रही है। हम वो कंपनियां शॉर्टलिस्ट करते हैं और पीएमएस के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट। सो फ्यूचर ऑफ एसएमई एंड माइक्रो कैप सेक्टर इन इंडिया। सो इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा इंडिया ग्रोथ स्टोरी का। सो जस्ट इतना कहूंगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज नॉट ड्रिवन थ्रू एनी लिक्विडिटी और नॉट थ्रू एनी जियो पॉलिटिक्स। इट इज मोस्टली ड्रिवन थ्रू द यूथ, जो करंट यूथ है, जो अब इंडिया को फर्दर आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट। So SME and micro cap growth in India. So factors driving the major sectors like EV, defense, solar. ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे यूथ इज फोकसिंग हाईली एंड द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। सो ये सेक्टर्स विल बी वेरी हाईली ग्रोइंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 years in India. Next. सो व्हाई इन्वेस्ट इन एसएमई एंड माइक्रो कैप एक्सचेंज? सो बेसिकली हम हमेशा इन्वेस्टर को ये कहते हैं उनके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, उनका मेजोरिटी ऑफ द पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में ऑलरेडी डिप्लॉयड है। हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स अपना कुछ पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो एसएमई और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करे टू गेट अ अल्फा ओवर देयर मिड कैप लार्ज कैप। सो माइक्रो कैप एंड एसएमई की जो कंपनीज होती है, वो आपको एक बहुत बड़ा अल्फा देने की अपॉर्चुनिटी देती है, बिकॉज दे आर स्मॉल कंपनीज। उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत फास्ट होगा। जैसे एक स्टोरी है, 0 to like 1 to 10 इज फास्ट, 10 to 100 इज डिफिकल्ट, 1 to 10 इज ऑल्सो 10 times, 10 to 100 इज ऑल्सो 10 times, बट 1 to 10 पॉसिबल है, 10 to 100 बहुत डिफिकल्ट होता है। सो हम यहाँ पे कंपनीज देख रहे हैं जो 1 to 10 की है। ठीक है, तो ये जो 1 to 10 की जो जर्नी होती है, वो एसएमई और माइक्रो कैप ही अपॉर्चुनिटी देता है। तो वो अपॉर्चुनिटी हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में कुछ पोर्शन रखना चाहिए। नेक्स्ट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, जैसे मैंने अभी बताया, इन्वेस्टर्स को एक पोर्शन मिले एसएमई माइक्रो कैप का, एक अल्फा करने का अपॉर्चुनिटी मिले। एंड ये जो कंपनीज है, यहाँ पे एनालिसिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए हैविंग अ प्रॉपर एनालिटिक्स टीम इज वेरी मच नेसेसरी। नेक्स्ट। So investment strategy. Now we'll talk about the two strategies which StepTrade PMS has. There are two strategies. One is StepTrade SME fund and StepTrade Rising Star fund. So StepTrade SME fund is जो हम SME कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जो SME एक्सचेंज पे लिस्टेड है, 200 to 500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां,
जो पोटेंशियल रखती है 2200 मार्केट कैप पे पहुंचने की, उनके ऑर्डर बुक्स के बेसिस पे, प्रमोटर्स के बेसिस पे। ये बेसिकली एक फिल्टरेशन हो जाता है कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का। जब ये फिल्टरेशन हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस आता है। वंस वी फिल्टर दिस, देन वी गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट थीसिस। इन्वेस्टमेंट थीसिस के अंदर और मोर देन 100 फैक्टर्स कम इनटू पॉइंट, लाइक आरओई, आरओसी, पैट, ग्रोथ, इकोनॉम, रेवेन्यू ग्रोथ, बहुत सारे मल्टीपल फंडामेंटल सेक्टर्स आ जाते हैं जिसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, कंपनियां फिल्टर करते जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड फिल्टरेशन आता है ऑन द टेक्निकल पार्ट्स। थर्ड फिल्टरेशन आता है ऑन द सेंटिमेंटल पार्ट। सो सेंटिमेंट्स को एनालिसिस करना इन द एसएमई कंपनीज इज वेरी मच नेसेसरी। सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे होता है? प्रमोटर्स का माइंडसेट क्या है टुवर्ड्स द कंपनी, एम्प्लॉइज, केएमपीज क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का सप्लायर, कंपनी का कस्टमर कितने स्ट्रांग है। ये सारी चीजें बहुत नेसेसरी है एक एसएमई एक्सचेंज की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। वो एनालिसिस और वो इन्वेस्टमेंट के थीसिस में आता है। सो देयर इज अ फनल, जो फनल के अंदर पहले 200-500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां शॉर्टलिस्ट होगी। फिर उसके बाद जो कंपनियों के प्रमोटर होल्डिंग 50% एंड अबव है वो शॉर्टलिस्ट होगा। तो जो कंपनीज का ऑर्डर बुक अच्छा है वो शॉर्टलिस्ट होगा। तो ऐसे कर करके एक फनल में से कंपनियां निकलती है। जब फनल में 300 कंपनियां घुसती है तो निकलती सिर्फ 20 है, और उसमें से हमको इन्वेस्ट करना है सिर्फ 10 कंपनियों में। तो इस तरह से ये फंड की स्ट्रेटेजी चलेगी। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो द नो नो प्रीवियस प्रीवियस स्टेप ट्रेड राइजिंग स्टार फंड, प्रीवियस वन। ये हो जाता है सेकंड स्ट्रेटेजी। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है जहां पे हम ऐसे एसएमई कंपनियों में फोकस कर रहे हैं। नाउ सेकंड स्ट्रेटेजी इज माइक्रो कैप। तो 500 से 2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां जो एक थोड़ा सा स्टेगनेंट लेवल पे आ चुकी है। यहाँ पे कई कंपनियां आप देखोगे तो आज भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो एसएमई से यहाँ पे आई है, इस लेवल पे आई है। मतलब 200-500 करोड़ के मार्केट कैप के लेवल पे और एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड से ये वाले लेवल पे आ गई, जहां पे वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप तरीके मेन बोर्ड पे लिस्टेड है। तो पहला स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी होता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है जहां पे एसएमई एक्सचेंज में हम लिस्ट कर ले। सेकेंड स्टेज आ जाता है जब वो कंपनी एक लेवल तक पहुंच गई। सो बेसिकली फंड्स को, इन्वेस्टर को अपने फंड्स को दोनों बाजू क्यों डाइवर्सिफाई करना है? एक स्ट्रेटेजी है जहां पे कंपनीज बहुत छोटी है, और एक कंपनीज है जहां पे कंपनी एक लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर दोनों लेवल पे थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉयड है तो कस्टमर का बीटा बहुत कम हो जाता है, यानी एक सिक्योर्ड लेवल पे आ जाता है। राइजिंग स्टार फंड के अंदर we would be investing in the companies in the range of 500 to 2000 crore market cap with the same unit metrics which have multiple things, order books, promoters background, promoter holding, everything। वो सारी चीजें strategically एनालिसिस होता है, फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट। सो दिस इज बेसिकली द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द फंड। दोनों स्ट्रेटेजीज के अंदर द हर्डल रेट इज 18%, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जब हम 18% का हर्डल रेट बोलते हैं तो जब तक 18% का इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिल रहा तब तक फंड के पास कोई परफॉर्मेंस फी का इनकम नहीं आ रहा। यूजुअल पीएमएस में जो हर्डल रेट चलता है वो चलता है 10 से 12% का। अब 10 से 12% का रिटर्न तो नॉर्मली कोई भी अगर फंड निकाल रहा है उसके ऊपर वो आपका परफॉर्मेंस फी चार्ज कर लेगा। तो आपका रिटर्न जो है आना चाहिए एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं 2%, 2.5% और माइनस हो जाएगा। पर जब हम 18% का हर्डल रेट की बात करते हैं तो 18% तो मिनिमम इन्वेस्टर कमा रहा है, वहां तक तो फंड कुछ कमा ही नहीं रहा। यानी फंड का जो टारगेट इंटरेस्ट रिटर्न होता है वही एक बहुत बड़ा बेंचमार्क हो गया 18% का। मैनेजमेंट फीस 2.5% चार्ज क्वार्टरली, and performance fees 30% charged annually. So this unit metrics remains same for both the strategies. Next. Investment process and analysis. So I've already talked brief on this part. Further, we can have a discussion after the Q&A on this part. Same the funnel. 300 कंपनियां फनल में आती है, अलग अलग यूनिट मैट्रिक्स पे शॉर्टलिस्ट होती है, 10 कंपनियां बचती है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। So both the funds, Step Trade SME Fund and Step Trade Rising Star Fund. So investor has an option to invest in a 50-50 ratio or 75-25 ratio, with giving us the right to change according as and when market requires. So SME में ऑलरेडी सपोज इन्वेस्टर ने 50 लाख दिया, 25-25 लाख हमने दोनों फंड में इन्वेस्ट कर दिया। कोई इन्वेस्टर को लगता है कि मेरा 75% माइक्रो कैप स्मॉल कैप में रखो और 25% ही एसएमई में रखो, तो वी कैन डू दैट। बट जब हमको लगेगा कि एसएमई में अभी बेटर अपॉर्चुनिटी है तो वी वुड वांट दैट कि हम उसको थोड़ा सा प्ले कर पाए। नेक्स्ट।
So exit strategy. So this is very important. पैसा लगाना आसान है, निकालना मुश्किल है. So usual saying in our financial market. Exit strategy is very much important. So SME जब हम माइक्रो कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम्स हम लोग ट्रैक करते हैं कि उसका 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम कितना है, एक महीने का एवरेज वॉल्यूम कितना है, जिसके हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी खरीदते हैं. तो वो क्वांटिटी हम उतनी ही लेते हैं जो 1 या 2 दिन के अंदर एग्जिट हो पाए, उतना वॉल्यूम हो वो कंपनी में. सेकंड, जो सेंटीमेंटल एनालिसिस किया जाता है कोई भी कंपनी का, वही उसका डिमांड एंड सप्लाई सिक्योर करता है ऑन द इक्विटी मार्केट्स. फर्दर एक और एनालिसिस किया जाता है एफआईआई डीआईआई का कितना इन्वॉल्वमेंट है कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर, जिससे कभी कोई लिक्विडिटी का कंसर्न ना है. तो वो चीज को भी स्टडी किया जाता है. ये 4-5 पॉइंट्स है जिसको हम लोग हमारे एनालिसिस के अंदर वो मतलब ऑलरेडी फिल्टरेशन पॉइंट्स के अंदर है, ताकि कोई भी स्क्रिप्ट को एग्जिट करने में दिक्कत ना आए. एंड ये एक एग्जिट करने के लिए एक हमने मीडियम रखा है कि हमको एग्जिट में कोई दिक्कत ना है. बट एग्जिट करनी कब है, तो एग्जिट तब की जाती है जब हमारा एक टारगेट अचीव हो जाता है. सो कोई भी कंपनी है उसको एक टारगेट के साथ लिया जाता है कि अगर सपोज हमने 50 रुपीज में एंटर किया है, वी हैव अ टारगेट कि ये कंपनी अभी हमको 20 के पी पे मिल रही है, इंडस्ट्री का पी 40 है, सो हम 40 के पी तक स्टैंड कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी इतना प्रॉफिट देगी, तो हम इस टारगेट तक पे इस प्राइस को रख सकते हैं विच इज अ वायबल प्राइस. वो टारगेट सेट करते हैं, तो जब वो टारगेट अचीव होता है तो वी एग्जिट. सेकंड, देयर इज अ कोई प्रमोटर्स के अंदर या कोई भी की मैंने केएमपी के अंदर कोई बड़ा चेंज है जिससे कंपनी के विजन को इफेक्ट आ सकता है, कंपनी का विजन डाइवर्सिफाई हो सकता है, या ऑपरेशनल कोई चैलेंज कंपनी को आ सकता है, तब वहां पे एग्जिट लेने का वी प्लान. थर्ड, कोई मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो गया, मार्केट का डायनेमिक्स चेंज हो गया, अचानक से कहीं पे भी कोई रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए तो उस वजह से कंपनी को इफेक्ट आ सकती है बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट. बहुत सारी चीजें होती है. इवन पॉलिटिक्स प्लेज अ मेजर फैक्टर इन दिस पार्ट. फंडामेंटल डिटोरेशन में बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर कोई भी ऐसा, जैसे देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट वी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी रिसेंटली, उसका लोन्स एंड एडवांसेस अचानक से एक क्वार्टर में काफी बढ़ गया, 2x हो गया. सो वी फाउंड दैट कंपनी लोन्स ले रही है काफी हैवीली, बट वो डिप्लॉय सही जगह से नहीं हो रहा है बिकॉज दैट वाज अ वर्किंग कैपिटल लोन. वो फिक्स्ड एसेट्स में डिप्लॉय नहीं हुआ. अब वर्किंग कैपिटल लोन लिया है तो वो कहीं ना कहीं उसका कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, बट वो भी नहीं बढ़ा. तो वी फाउंड दैट कि यहाँ पे कहीं पे कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, तो और हमारा उस टाइम पे प्राइस भी सही था, तो वी टुक द एग्जिट. ये चीज होती है. और लास्टली एग्जिट होता है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन पे, कभी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया. नेक्स्ट. सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप मल्टीप्लायर्स. सो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब ये मोर देन 500 कंपनीज जिन्होंने ऐसा पैसे को मल्टीप्लाई, वेल्थ मल्टीप्लाई किया है. दिस आर जस्ट सम एग्जांपल्स. नेक्स्ट. सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट टीम. सो मिस्टर यश, जो अभी हमारे साथ कॉल पे भी है, इज द मेन portfolio manager. Sonali is part of the research team. Ankush and Kresha, they are both also the promoters of the company. And sorry, Ankush is not. Kresha is the promoter of the company. Ankush and Kresha both are also part of the investment team. So basically, जब भी कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस या एनालिसिस के लिए आती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आती है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड, मतलब इन्वेस्टमेंट कॉल लेने से पहले, और हर कोई अपनी स्किल के साथ आता है, जैसे मैंने बताया. सो अंकुश हैज अ गुड होल्ड ओवर टेक्निकल एनालिसिस, क्रेशा हैज अ गुड होल्ड ओवर फंडामेंटल एनालिसिस, यश हैज अ गुड होल्ड ओवर अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज बिजनेस ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी इन XYZ थिंग्स. सो हर एक कोई अपनी स्किल के साथ आता है, हर कोई अपना पॉइंट रखता है, एंड उसी हिसाब से फिर फर्दर कॉल लिया जाता है. And all are qualified people with major degrees with a good experience into the equity markets. Next. Key fund terms. 50 lakhs is the minimum ticket size. 2.5% is the management fee, which is paid quarterly. Investment horizon is 3 to 5 years. So usually we ask the investors to keep it for 3 to 5 years, but the lock-in is only for 6 months. So investor के पास अपना ऑप्शन है हमेशा 6 महीने में निकलने का, बट वी वुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट के वो 3 to 5 years के होराइजन से इन्वेस्ट करे, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस. देयर आर एग्जिट लोड्स. सो एक साल में 3% एंड मल्टीपल थिंग्स एज इट मेंशन. सो S&P BSE 500 is our benchmark and a hurdle rate 18%, which is a major factor for any investor to look into the fund, because अगर 18% का hurdle rate है तो fund has very high goals. Performance fee is 30% as earlier said. Okay, lastly the disclaimer. So this is all about the fund, PMS, Devanshu. Now further we can have the Q&A from the investors. So first of all, thank you for giving a brief explanation about both the PMSs.
Now, let me ask you a couple of questions. So, we have a question from one of our investors that, what should be the realistic expectation? तो क्या एक investor को एक realistic expectation रखनी चाहिए आपके fund से? सो बेसिकली देवांशु ऑनेस्टली कहूंगा तो जैसे म्यूचुअल फंड में कहते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो पीएमएस में भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा, बिकॉज वी प्ले इन द सेकेंडरी मार्केट। यूजुअली क्या होता है, पीएमएस के जो इन्वेस्टमेंट थीसिस होते हैं ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो उसका इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत ही स्ट्रांगली किया जाता है। मतलब जरा भी एक भी अगर इसकी पॉइंट लिखता है तो कंपनी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न की होती है वो ज्यादा नहीं रख सकते हम। बट आइडली द व्हाट पीपल शुड सी इन दिस फंड इज कि हर्डल रेट 18% का है। तो अगर 18% का हर्डल रेट है तो 18% तक तो फंड कमा ही नहीं रहा। सो विच इज एन आइडल टारगेट रिटर्न फॉर द फंड। नाउ एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर करेगा, बट इट कैन गो फ्रॉम 18 टू 30-40%, कुछ भी हो सकता है इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन एंड हमारा डिलीवरेबल। बट हाँ, 18% तो एक बहुत ही आइडल रिटर्न हो जाता है। एंड मोस्टली जितने भी पीएमएस मार्केट में है, देवर हर्डल रेट ऑफ 12%। Yeah. सो अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे, अगर पीएमएस स्टेप का पीएमएस 25% का भी एनुअल रिटर्न निकालता है, ठीक है, तो वो 7%, जो 18 के ऊपर 7% का रिटर्न है, उस पर 30% परफॉर्मेंस फी चार्ज करेगा। सो 2.1 चार्ज करेगा। तो 25 माइनस 2.1 अगर हम करेंगे तो 23% का रफली येल्ड आएगा इन्वेस्टर का। जबकि 12% के हर्डल रेट में अगर 20% का परफॉर्मेंस फी है तो इन्वेस्टर का येल्ड आ जाएगा 21 के आसपास। Right. Right. So, thanks for answering that question. Now, we have one more question for you, that what should be the ideal time horizon? Because 3 से 5 साल तो आप बोलते हैं इक्विटी में होना भी चाहिए, बट ये एसएमई फंड्स है और माइक्रो कैप्स है, तो आपको क्या लगता है कि एक आइडियल टाइम होराइजन क्या होना चाहिए, या 3 से 5 साल सो होना चाहिए? यूजुअली क्या होता है, हाँ, Yeah. हम जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो मेन बोर्ड पे मतलब हम वो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे एसएमई के अंदर जो अगले 6 महीने में मेन बोर्ड पे माइग्रेट होने वाली है। यूजुअल केसेस में क्या होता है, ये 6 मंथ्स का टाइमलाइन कैन गो अप टू 9 मंथ्स विद इन 10 टाइमलाइन। सो इसीलिए वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो इन्वेस्टर की है, वो कभी कभी 6 से 9 महीने के गैप में ही आ सकती है। जो हमने 6 महीने टारगेट किया, बट वो 6 से 9 में आ सकती है। सो यूजुअली अ ईयर, 1 ईयर शुड बी अ मिनिमम के इन्वेस्टर 1 ईयर के पहले तो निकालने का, मतलब 1 साल तक उसको पैसे की जरूरत नहीं हो, वो सोच के वो पैसा लगाए। So we have one more question from one of our valuable investor. He's writing that, will this have companies added based on Chanakya AIF, which is upstream in unlisted space? दोनों का एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि चाणक्य जो है वो अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करता है, प्री आईपीओ इन्वेस्ट करता है। पीएमएस जो है वो प्री आईपीओ या अनलिस्टेड में इन्वेस्ट नहीं करता, वो लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। हाँ, बट व्हाट कैन हैपन इज, सपोज चाणक्य ने कोई कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, अब उसकी आईपीओ वैल्यू भी हमको सही लगती है, तो पीएमएस फर्दर उसको आईपीओ वैल्यू पे इन्वेस्ट करेगा वैसे। एक और क्वेश्चन है मेरे एक इन्वेस्टर का, उनका पूछना यह है कि किस तरीके के सेक्टर्स आपको ज्यादा पसंद आते हैं, और किसमें आपका निवेश करने का मन ज्यादा रहता है, या फिर वो आपके थीम में देखो, रहते ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताओ सर, हर किसी को, ऑनेस्टली बताओ देवांशु, हर किसी को चलती ट्रेन ही अच्छी लगती है। और आज की हैं? डेट में चलती राइट। ट्रेन अगर हम कहें तो डिफेंस का सेक्टर है, सोलर का सेक्टर है, ईवी का सेक्टर है, ये सब बहुत चल रहे हैं। बट यूजुअली क्या होता है, जब ये सेक्टर्स बहुत चलते हैं और डिमांड ज्यादा है तो वो उतने ओवर वैल्यू भी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे को सोलर सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, हमको सोलर सेक्टर में ही पैसा लगाना है, सरकार इतना सब्सिडी दे रही है, पैसा दे रही है, मार्केट जबरदस्त है। बट अब ये डिमांड सब जगह है, तो उस वजह से सेक्टर्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाते हैं। तो होता क्या है, हमको सेक्टर्स उस तरह से बाइफरकेट करने रहते हैं कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई भी सही तरीके से चल रहा हो वो सेक्टर का। सिर्फ सेक्टर की डिमांड ही डिमांड चले जा रही है बट उतना सप्लाई नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बबल क्रिएट कर देगा, ओवर वैल्यू क्रिएट कर देगा। राइट। राइट। सो दैट्स वैसे हम लोग जो सेक्टर्स को पकड़ते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वी फाइंड अ वेरी गुड पोटेंशियल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। सोलर, डिफेंस, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स में हम फोकस रखते हैं। प्लस एक और सेक्टर है जहां पे हम लोग ज्यादा फोकस रखना चाहेंगे, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, ये भी अगले 3-4 साल में बहुत ग्रोथ देखने वाले हैं। राइट। 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 अब एक और क्वेश्चन है कि व्हाई स्पेशली एसएमई एंड माइक्रो कैप? इसका बहुत ऑनेस्ट आंसर दूं सर, देवांशु, तो लार्ज कैप मिड कैप में तो हर कोई लगा हुआ है, ठीक है। अब वहां दिमाग लगा के मतलब नहीं है। रिलायंस की रिसर्च रिपोर्ट कम से कम 100 लोग निकालते हैं रोज,
अब वहां राइट। दिमाग लगा के हमको मजा नहीं आता, मतलब वो कंपनी का हमें पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 1 to 10 इज वन थिंग, 10 to 100 इज अदर थिंग। सो 10 to 100 इज वे बियॉन्ड डिफिकल्ट देन 1 to 10। दोनों में स्टोरी एक ही है, पैसा 10 गुना ही बनता है दोनों में। परफेक्ट। अब मेरे एक ठीक है। और इन्वेस्टर सो का बेसिकली क्वेश्चन। क्या होता है, ओके। हाँ, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, जब हम ये एसएमईज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 1 to 10 की स्टोरी मिलती है। ओके। एंड हम लोग इतने 7-8 साल से करते आ रहे हैं, तो वी गॉट अ गुड होल्ड ओवर द एनालिसिस। ओके। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये आया है कि लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट ट्रिक इन दिस कंस्ट्रक्ट, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्क मिटिगेशन? सो बेसिकली रिस्क मिटिगेशन के बहुत सारे पॉइंट्स है, बट वो जब कंपनी में देर आर टू काइंड ऑफ रिस्क मिटिगेशन। वन पॉइंट इज कि हम कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक फर्स्ट रिस्क मिटिगेशन होता है, वो होता है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। तो वो एक पहला रिस्क मिटिगेशन होता है, मतलब रिस्क एनालिसिस होता है कि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए बिकॉज ऑफ द कंपनी फंडामेंटल्स। फिर जब वो सब चीजें श्योर हो जाती है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ लेवल पे है, अब पैसा लगाना है, तो सेकंड फिर रिस्क एनालिसिस आता है, वो लिक्विडिटी वाले पार्ट का, कि एग्जिट कितने दिन में होगी। तो मैंने जैसे ही पहले ही बताया कि हम एवरेज वॉल्यूम को कंपेयर करके ही उतना ही स्टॉक परचेस करेंगे जितना हम 1 या 2 दिन में सेल कर पाए, मैक्सिमम 3 दिन पे सेल कर पाए, उसके वॉल्यूम को कंपेयर करके, वॉल्यूम का 20% और वॉल्यूम का 30%, जो हम इजीली सेल कर पाए। और ये जो लिक्विडिटी का इश्यू है, ये अब एसएमई में नहीं रहा है। आप अगर देखोगे तो पहले जो डेली एवरेज वॉल्यूम था जो एसएमई एक्सचेंज पे होता था, वो करीबन 80 करोड़ 100 करोड़ होता था। आज वो 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया। राइट। 5 टाइम्स हो गया है लिक्विडिटी, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। इसका एक राइट। बहुत बड़ा एग्जांपल आपको बताओ, आप ऐसे भी देख सकते हो। आज की डेट में एक आईपीओ आता है जब 50 करोड़ का, तो वो 500 गुना बढ़ता है, 500 या 200 गुना बढ़ता है। जब 200 गुना कोई आईपीओ बढ़ता है तो उसको 10,000 करोड़ की प्राइमरी मार्केट में लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है। सो 10,000 करोड़ एक कंपनी में आया फॉर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट 50 करोड़ का हुआ। जब 10,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्राइमरी मार्केट में आ रही है, तो ये लिक्विडिटी जो प्राइमरी मार्केट की है, ये धीमे धीमे सेकेंडरी मार्केट में जाएगी, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में माल नहीं मिला। यस। तो ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिक्विडिटी है। सो नाउ द लिक्विडिटी पॉइंट इज सॉल्व। आई डोंट थिंक सो कि लिक्विडिटी का आपको कंसर्न है एसएमई में, है, बट वो उन कंपनीज में ही होता है जो कंपनियां फंडामेंटली सही नहीं है, और वो हमारे पहले फिल्टरेशन में निकल जाती है। राइट। सही है। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन मेरे को आया है, वो उनका कहना ये है कि कब एक इन्वेस्टर को प्री आईपीओ और लिस्टेड स्टॉक्स छोड़ के एसएमई की तरफ बढ़ना चाहिए, वो कब ऐसा मूवमेंट होना चाहिए एक इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल में कि वो अब प्री आईपीओ में भी इन्वेस्ट ना करे और इसमें भी सर, इन्वेस्ट ना करे? हाँ, सो देवांशु, मैं यूजुअली, हम जब इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो व्हाट वी सजेस्ट टू इन्वेस्टर्स इज, आप ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो अनलिस्टेड से हटा दो, प्री आईपीओ से हटा दो और एसएमई में डाल दो। ये मैं कोई इन्वेस्टर को सजेस्ट नहीं करूंगा, इंडिया का शायद शायद सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो या चाहे इंडिया का सबसे छोटा इन्वेस्टर हो। हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना जरूरी है। दैट इज, इवन रियल एस्टेट, इवन कमोडिटीज, इवन इक्विटी, इवन एफडीज, इवन म्यूचुअल फंड, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। हर पोर्ट हर सो एनी इन्वेस्टर कैन हैव इज 50% ऑफ पोर्टफोलियो इन इक्विटी मार्केट्स, 20% इनटू द कमोडिटी मार्केट। ऐसे एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। अब जब उसका 50% पोर्टफोलियो जो इक्विटी मार्केट्स में है, उसको फिर सेक्टर के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो उससे 15% अगर उसका अनलिस्टेड स्पेस में है, तो उसका करीबन करीबन अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 20% एसएमई और स्मॉल कैप माइक्रो, एकदम स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप में होना चाहिए, एटलीस्ट 20%। राइट। राइट। आपको क्या लगता है जैमिन जी की व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एसएमई, कमिंग इन दी फ्यूचर? सो मतलब आगे कुछ जो 5-10 साल हैं उसमें आपको एसएमई का फ्यूचर क्या लगता है? बेसिकली क्या कमेंट कोई हो भी, गया आपसे? सर, बीएससी एनएससी पहले एसएमई था, बीएससी एनएससी आज जो है, तो वो कहीं ना कहीं शुरुआत तो एसएमई से ही होती है हर किसी की। नास्डैक वाज वंस एन एसएमई। सो कहीं ना कहीं शुरुआत तो एसएमई से ही होती है। अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं कि एसएमई का कितना ग्रोथ होगा, लास्ट 3 साल में जितना एसएमई ने ग्रोथ किया है, अगर उतना और अगले 10 साल में ग्रो करता है, उसी रेशियो से अगर वो ग्रोथ करते रहता है, तो हम इसको शायद एक नेक्स्ट बड़ा मेन बोर्ड एक्सचेंज ही देख लें इसको। पहला चीज। दूसरा, दूसरी चीज, सी एक ग्रोथ को एनालिसिस करने का एक तरीका है। आप ग्रोथ कैसे एनालिसिस करोगे, दो तरीके से एनालिसिस करोगे कि ग्रोथ है या नहीं, ऐसे में ग्रो होगा नहीं होगा। एक, कंपनियां कैसी आ रही है, कैसी कंपनियां हैं जो आईपीओ लेके आ रही है, तो वो कंपनियों की ग्रोथ है या नहीं। अगर कंपनियां ग्रो करेगी तो ऐसे में ग्रो करेगा, एक्सचेंज ग्रो करेगा।
अब ये कंपनियों की ग्रोथ अगले 5 साल में कोई रोक ही नहीं सकता है। इंडिया का जो ग्रोथ है, अब इंडिया में अगर स्टील की इतनी डिमांड है तो वो कौन फुलफिल करेगा? अब इंडिया में अगर एग्रो गुड्स की डिमांड है, इंडिया में लॉजिस्टिक्स की डिमांड है, तो ये एसएमई कंपनी फुलफिल करेगी। रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल मार्केट, तो रूरल में जो डिमांड राइट। जनरेट हो रही है वो कौन डेवलप करेगा? अगर रूरल में कोई बंदे को ब्रांडेड गारमेंट्स पहनने हैं तो वो कोई ब्रांड के कपड़े खरीदने जाएगा, तो वो डिमांड फुलफिल तो वो ब्रांड ही कर रहा है। राइट। तो ये डिमांड ही इतनी जनरेट हो रही है और ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से जो डिमांड जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं एसएमई कंपनीज करेगी। तो फर्स्ट राइट। थिंग, ऐसे कंपनी एसएमई कंपनीज जिस हिसाब से है तो ये ग्रोथ ड्रिवन ग्रोथ होना ही होना है। सेकंड, द लिक्विडिटी। जो मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, आज अगर कोई आईपीओ में 10,000 करोड़ की लिक्विडिटी आती है एक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ये पैसा ऐसा तो है नहीं कि रातों रात गायब हो जाएगा। ये 10,000 राइट। करोड़ तो रहने ही वाला है। ये आज कल के आईपीओ में आएगा, परसों के आईपीओ में, तो ये जब तक लिक्विडिटी है इस मार्केट को कौन रोक सकता है ग्रो होने से? राइट। राइट। सर और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आप श्योर, यस जी। मार्केट कैसा बड़ा हो रहा है अगले 5 साल में, तो हम लोग अगर देखते हैं अभी रिसेंटली काफी बड़े प्लेयर्स भी एसएमई के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया या मॉर्गन स्टैनलीज हो गया। और लास्ट कुछ दिनों पहले एक आईपीओ आया था, उसमें डीआईआई के और से मतलब एचडीएफसी बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये अभी बड़े प्लेयर्स भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफी मार्केट आगे स्ट्रांग ही लग रहा है और बहुत बड़ा होने वाला है ये मार्केट। श्योर। इसमें एक और क्वेश्चन आया है वन ऑफ माय इन्वेस्टर का कि यू टॉक्ड अबाउट सेंटिमेंटल एनालिसिस, हाउ विल इट बी डन बाय फंड एंड रीवैलिडेशन टाइमलाइन? सो बेसिकली सर, सेंटिमेंटल एनालिसिस ये होता है, ये हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। जैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस करने का सबसे बड़ा तरीका होता है प्रमोटर्स का विजन और माइंडसेट क्या है कंपनी को लेके, विच इज अ सेंटीमेंट। वो कोई क्वांटिटेटिव चीज नहीं है कि जिसको हम एक्सेल पे भर के लिख सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं फिल्टर मार के। इट इज एन एनालिसिस का एक स्किल होता है। तो जो प्रमोटर्स है उनका विजन, फिर उसके साथ साथ कंपनी का डिमांड सप्लाई कैसा है इन द मार्केट, टू अंडरस्टैंड दैट। एंड वो कैसे किया जाता है, उसके कस्टमर्स जो है वो किस कैटेगरी के हैं। ए कैटेगरी के कस्टमर्स है तो कंपनी हैज अ गुड सेंटीमेंट, बेसिकली बिकॉज टारगेट ऑडियंस। बेसिकली मतलब टारगेट ऑडियंस अगर बहुत अच्छी है तो वो कंपनी का सेंटीमेंट बहुत, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। कंपनी के सप्लायर्स कैसे है, कंपनी के अब रिलायंस जैसा अगर कंपनी, कोई एसएमई कंपनी का सप्लायर है, कोई एसएमई कंपनी कोई बड़ी कंपनी से माल खरीद रही है, तो उसका सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो ही वो माल खरीद पा रहा है, क्योंकि वो उस बड़ी कंपनी को तो पैसा टाइम पे देना पड़ेगा। राइट। तो 2 साल से अगर कंपनी, सो सेंटीमेंट एनालिसिस इज बेसिकली काइंड ऑफ पैसा टाइम से जा रहा है, टाइम से आ रहा है, कंपनीज का, एम्प्लॉयज का कल्चर, ये बेसिकली चीजें क्वांटिटिव वे में एनालिसिस नहीं की जाती, इसको क्वालिटेटिव वे में एनालिसिस किया जाता है। जो पर्सनली प्रमोटर्स से, टीम से, कंपनी के इंटरमीडिएटरी से डिस्कस करके आया जाता है, जिसकी एक कोई एक्सेल नहीं बनती है, जिसकी एक वर्ड फाइल में एक रिपोर्ट बनती है, जिसको फिर हम स्टडी करते हैं। राइट। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टॉक यू विल बी कंसीडरिंग व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द पोर्टफोलियो? ये सब एक्चुअली आंसर यश के थे पर मैं दिए जा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सो नहीं तो बेसिकली, दोनों में से कोई भी दे सकता है, दैट इज द रीजन यू तो बोथ नहीं, आर हाँ ऑन। ठीक है, I'll ask यश टू टेक दिस। या या Basically, the portfolio would be comprises of 25 to 30 stocks। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा जहाँ पे अगर क्लाइंट अगर 50-50 का रेशियो करता है तो 10 कंपनीज एसएमईज के लेंगे हम, और 10 to 15 कंपनीज हम माइक्रो और स्मॉल कैप्स के लेंगे। तो बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा। तो नंबर वुड बी अराउंड 20 to 25। So, audience, do you have any other question from Jamin ji and Yes ji, or should I ask one or two question from my side from the guest? We will wait for 2 minutes for people if they want to ask our investor community, and then I'll go about it. I have one or two questions. So I think right now nobody replied. तो जमीन जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स हैं और जिनकी वेल्थ बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ भी है, सो उन जैसे इन्वेस्टर्स को किस टिकट साइज में आपको पैसा देना चाहिए? आप तो 50 lakhs मिनिमम डिमांड करते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक हाउ मच अ पर्सन, सपोजिंगली इफ somebody has 10 crores of portfolio,
इन इक्विटी, तो उसमें से कितना उनको ट्रिम करना चाहिए या फिर कितना पैसा आपके पास भी देना चाहिए, वो क्या आपका थॉट है उसमें? आई आइडियली थिंक फॉर अ रिस्क मतलब इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग पर्सपेक्टिव से कोई भी इन्वेस्टर को एक एसएमई फोकस्ड और माइक्रो स्मॉल कैप फोकस्ड पीएमएस में 20% से ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अगर उसका इक्विटी पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए का है तो आइडियली उसको 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहिए, और मिनिमम 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। मिनिमम एक 10% उसका एक इस तरह के पोर्टफोलियो में लगना चाहिए, और मैक्सिमम 20% लगना चाहिए। क्या हम ये इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर कर सकते हैं आपके साथ, चाहे तो यू मतलब एसटीपी रूट से क्या हम उसको धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, कि आप एक बार में डिप्लॉय करते हैं? सो बेसिकली क्या रहता है, एक इन्वेस्टर हमको 50 लाख रुपीज का जब इन्वेस्टमेंट देता है तो वो 4 महीने 5 महीने के स्लैब में उसको कर सकता है। बट एट द एंड जब तक 50 लाख पूरा नहीं होगा हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम राइट, उसको लिक्विड फंड में रखेंगे। राइट, राइट, दैट्स द ही कैन रेगुलेशन। ऑब्वियसली गिव अस। हाँ, सो इज द रेगुलेशन, तो वो एसआईपी के मॉडल में दे सकते हैं हमको। बट जो उसका हॉराइजन है उसको फिर वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 1 साल की जगह एटलीस्ट 1.5 साल का हॉराइजन रखे, तो फर्स्ट 6 मंथ उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड हो गया, नेक्स्ट 1 ईयर उसका रिटर्न पीरियड हो गया, रिटर्न जनरेशन पीरियड हो गया। एंड ऑल्सो टू ऐड दिस, अगर इन्वेस्टर के पास कहीं पे भी उसका जैसे लिक्विडिटी का अगर कोई चीज रहता है तो वो 50 लाख के स्टॉक भी दे सकता है। जैसे कोई भी इन्वेस्टर होते हैं, सो देयर इज ऑलवेज दिस मॉडल अवेलेबल इन द पीएमएस, दैट उनका जो एग्जिस्टिंग 50 लाख का पोर्टफोलियो है वो एज इट इज पोर्टफोलियो हमको ड्राइव कर दे। एंड फिर हम उसको एनालिसिस करके उसके ऊपर कोई स्टॉक रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो उसको हिसाब से कॉल लेते हैं, यानी पूरे पोर्टफोलियो को रीवैल्यू करते, रिकंसिडर करते। बेसिकली एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को टेक ओवर करके जो एसएमईज फिर और हम उसको माइक्रो कैप्स। बिल्कुल या बिल्कुल सो बिल्कुल। ये एक फीचर आपके पास अच्छा है, यूजुअली लोग पूरा बेच देते हैं और फिर अपने हिसाब से खरीदते हैं। सो हाँ, नहीं, हम उसको एनालिसिस करके फिर कर रहे हैं। तो आप अभी ये मार्केट्स देख रहे हैं, मार्केट्स इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, you know what do you think now? Should we hold on to some time for funding you, or should we fund right now? You will construct portfolio slowly. What are the views on the market as of now because of the market current situation? सो देखो, एक कहावत है वैसे तो कि लक्ष्मी जी चांदा करने आए तो मुंह धोने नहीं जाते हैं। Right. ठीक है, तो अगर कोई इन्वेस्टर अगर अभी दे रहा है तो हम उसके लिए ना नहीं कहेंगे। बट पॉइंट इज, मैं जो चीज समझाता हूँ, अगर हम सोचते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, एक्चुअली मार्केट बढ़ा नहीं है, कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ गई है। सो कंपनीज की अगर अर्निंग्स बढ़ेगी तो निफ्टी का जो पी है वो 2021 का चलता है यूजुअल केसेस में। अब अगर कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेगी तो ये पी को मैच करना ही है, तो निफ्टी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है और प्रॉफिट हो गया 1,200 करोड़, तो 20% अगर प्रॉफिट में ग्रोथ है तो 20% निफ्टी को बढ़ना ही है, Right. क्योंकि वो तो 20-21 के पी पे रहेगा। तो जब ये ग्रोथ, जब अगर ग्रोथ कंपनीज की अर्निंग्स में आएगा तो वो ऑटोमेटिक बाजार पे है। तो अभी हम जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, कि हमको लग रहा है बाजार बहुत बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई पे है, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ गई है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन कि अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ गई है तो कंपनी और ग्रोथ स्टेज पे है। सो मार्केट कैसी चीज है कि हम अगर लास्ट 100 साल की बात करें तो हमको हर पॉइंट पे मार्केट हाई लगा है, बट मार्केट ने हर बार अपना हाई तोड़ा है। सो कब ये सोचना ही कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये गलत है। मुझे नहीं लगता ये सोचना चाहिए कभी। हाँ, मार्केट का पी देखना चाहिए। मार्केट का पी अगर ऑल टाइम हाई पे है तो इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। सो इट इज अ So, वेरी कंट्रोल्ड मार्केट, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक मार्केट इज वेरी मच हाइड। right. एनी टाइम इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट इज अ गुड टाइम। So, एक और क्वेश्चन है, वो मेरे वैल्यूएबल इन्वेस्टर है जिनसे मैं दिन रात बात करता हूं, उन्होंने लिखा है क्वेश्चन: इज इट फेयर टू assume that Rising Star Fund is PMS equivalent of Chanakya Revolution AIF? If yes, please share the performance detail of Revolution AIF. इसे दो भाग में क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मैं दे दूंगा उनको, आप उनका फर्स्ट क्वेश्चन बस आंसर कर दो। इज दैट फेयर टू तो एज्यूम? बेसिकली, हाँ, बेसिकली सर पीएमएस को हम एआईएफ के साथ थोड़ा कंपेयर नहीं कर सकते, काफी डिफरेंस है। क्योंकि एआईएफ जो फोकस करता है वो प्री आईपीओ वैल्यूएशंस पे फोकस करता है, यानी एआईएफ की जो प्राइस एंट्री पॉइंट होगी वो प्री आईपीओ की रहेगी, पहला। दूसरी उसकी रहेगी आईपीओ प्राइस पे। जो जो प्राइस पे आईपीओ आ रहा है वो प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहा है एआईएफ, एंकर बुक तरीके या क्यूआईबी तरीके। जबकि पीएमएस जो है वो लिस्टिंग प्राइस पे एंटर कर रहा है।
तो एक प्राइस का बहुत बड़ा गैप रहता है दोनों कंपनियों में फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद। एंड सेकेंडली, जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट करके इन्वेस्ट की जाती है तो दोनों की पोर्टफोलियो में हार्डली 15-20% कंपनी आप कॉमन मान सकोगे, बाकी सब कंपनियां अलग अलग रहेंगी। Okay. So audience, any other question, or because now we are running short of time, I have taken almost more than 40 minutes of both the gentlemen out here. So if any other question, please contact us at 8368586435, or you can email us as well. We will give you all the details on that email. And any further inquiries, please reach us at www.aifpms.com. Thank you, Jaminji. Thank you, Yashji, Thank you, for Devanshu. giving your. Thank you, all the investors. We look forward. If you have any query, Devanshu is always there, and we are always ready to connect with you and answer any of the queries. Thank you so much, Devanshu. Thank you, sir. Have a lovely day ahead. Thank you, everyone, Thank you. for giving your valuable time, even all my investors. Thank you. Bye.